Good morning, sir. Thank Good you. morning, Thank you. sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Good response. Uh, Good morning. Sir. Thank you. Today we are here to discuss the new education policy. Now, every time the word new, we listen new. Is it packing is new, or the system is new, or the whole product is new? The main idea behind the new education policy tabled by the central government, it is not a one-day affair. It is not possible to bring the policies which will rule around say 30, 40, 50 years in 30 months or 40 months. The last policy, which was in 1986, we have started in 86, around 34 years back, and it required the updates. Updates, as you all know, that in a today's technical scenario, ongoing scenario, there are technical updations starting from your say computers, your WhatsApp, your Facebook, your mobile, daily updates, and a system which is belongs to 34 year back needs updation. This is the central government's mission under 2030 updations. Now, why new education policy? Why? We have to transform the education system of India because there is a complete brain drain from India. We are not getting employment, suitable employment in India. Secondly, the employment is available, but we are not getting suitable professionals for this competent jobs. Even the basic knowledge is lacking. The basic experience is lacking. Basic academics is lacking. I have worked at various levels, starting from schools, then engineering college, polytechnics, presently in university. Almost each and every level of experience I have tasted. I am founder principal for one of the polytechnic and founder dean for one of the engineering college. I have gone through the various academic processes, then affiliation processes, approval processes. Our system is very much good, but there are lots of checks. Then coming to the main motto today's, basically the education policy, it becomes for the education in school and higher education. The education policy, which was the Kasturi Ranjan, the ex-ISRO chief, Indian Space Research Organization chief, who recommended this policy, he almost touched each and every panchayat level of the villages, municipal corporations, legislative assemblies, member parliaments of each and every district of the India at the grassroots level. In 2016, he has submitted this policy. Now, the main motive, I will try to be comfortable in the both 2 and 3 languages. Let me. The main pillars for this policy is to reach, equivalency, quality, affordability, and last one is answerability. Means कंट्री के हर बंदे की रीच में हो, इक्वलेंसी हो कि अगर हमारे पास हमने कोई एजुकेशन हमारे पास है तो इट विल बी ग्लोबली इक्वलेंट. You understand, globally equivalent.
Then quality education. At presently we need quality education. Then affordability, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके, हर बंदे की पॉकेट में आ सके. देन आंसरेबिलिटी मीन्स कि हर बंदा जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको जो आपने नॉलेज, आपको अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम सिखाया है किसी इंस्टीट्यूशन ने, अगर वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, उसके बेस पे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, एंड यू हैव द सफिशिएंट स्किल्स, he or she or that institution will be unstable this time. Now, many if and doubts and do's and don'ts and if and doubts are there for the new education policy. This is just an at present a policy. अभी एक presently जो एक policy है, उसके बाद अब ये होगा क्या? It will take around 1 or 2 years. It may be 2022 or 2023, starting of 2023. It will be implemented. Now, I will try to today basically stick to the education, school education level. Now, the new education policy, which is instead of 10+2, at presently जो हम पढ़ रहे हैं, starting from first class up to +2, गवर्नमेंट की नजर है हम पे, हर स्टूडेंट पे, कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे उसने पढ़ना है, कैसे उसके एग्जाम होने हैं, ठीक है. अब वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है. इंस्टेड ऑफ 10+2, it will be 5 plus 3 plus 3 plus 4. Now, how to 5? Now, the 5 year, it comes to age of 3 to 8 years. Means जब 3 साल का बच्चा आप स्कूल में जाने लगेगा, ठीक है, ऑलरेडी है ये सिस्टम वैसे, ठीक है, 3 साल का स्टूडेंट कोई भी बच्चा होता है, हम उसको एंट्री करवा देते हैं स्कूल में. लेकिन नाउ अब ऑफिशियली जो पॉलिसी है, जो फर्स्ट स्टेज है 5 वाली, उसमें क्या है, फर्स्ट 2 years it will be a play school, no exam, nothing like this, and class 1 and 2 will be in this 5-year course, that is age group 3 to 8. NCERT इस पे एक सिलेबस डिटेल में बना रही है, जो डिटेल में सिलेबस 2020 तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. इट मींस बच्चा हमारा जो स्कूल से भागता था, पहले 3 साल प्लेइंग में, अल्फाबेट्स, नंबर्स, वही सारा कुछ सीख रहा है, नो LKG, UKG, अपर KG, like this. It will be from 3 to 8 years, class 1 and 2, 2 years of play school, and 1 and 2, so class 1 and 2, there will be no exam. This is called foundation, no exam, the foundation course. उसके बाद हमारा आएगा preparatory school, that is 5 plus 3, जो अगले 3 साल है, that is preparatory. अब इस सेक्शन में बच्चा क्या करेगा, 3rd, 4th और 5th 3 क्लासेस पास आउट करेगा, 3 क्लासेस 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड पास करेगा. अब इसमें थोड़ा सा जो एडिशन है, अब इसमें एक्टिविटी भी आ जाएंगी और इसमें स्टडी भी आएगी, दोनों पार्ट होंगे. अब अगर स्टडी भी आएगी तो नेचुरली इसमें अब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. मींस क्लास 3rd, 4th, 5th के लिए रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने होंगे, ठीक है. उस रेगुलर एग्जामिनेशन में NCERT जो डिटेल में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी, उसमें जो पेपर पेन वाला एग्जामिनेशन है वो थोड़ा कम होगा. दूसरा एग्जाम जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल, जो बच्चे का ब्रेन मैपिंग है, वो ज्यादा होगा. अब इस सेक्शन में जो वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ विल बी इंट्रोड्यूस्ड, साइकोलॉजी इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड,
उसके बाद एक मदर लैंग्वेज, जो मदर टंग है आपकी, जो आपकी भाषा है, राष्ट्र देश प्रदेश की भाषा है, उसको सीखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। पर इसमें वंस अगेन, अगर आप ऑप्शनली इंग्लिश विल बी रिक्वायर्ड। देन कम्स द स्टेज 5+3+3, नेक्स्ट स्टेज है जो, दिस विल बी मिडल स्टेज। इस सेक्शन में जो मिडिल स्टेज सेक्शन होगा, इसमें बच्चा जो हमारे पास 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, 3 क्लासेस कवर करेगा। अब इस सेक्शन में मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं। एक तो इसमें इंडियन लैंग्वेज मस्ट है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज इट विल बी मस्ट। सेकेंडली, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इसमें आपको कंप्यूटर की कोडिंग मस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ में एक ही मिनट में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब इसका ये सिस्टम क्यों है? क्योंकि प्रेजेंटली जो अभी कोविड सिचुएशन है, अभी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस लगाने में, टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने लगाने में, ठीक है। अगर हम आउटसाइड इंडिया देखें, यूएसए देखें, यूके देखें, वहां पे ये सिस्टम नहीं है। वहां पे क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो कंप्यूटर्स है फ्रॉम द मिडिल लेवल वो स्टार्ट हो जाता है। अब कई बार हो क्या रहा है कि इवन जो, अब अगर मैं, अपना बेटा है मेरा 10+2 में है, अभी रिसेंटली उसकी एडमिशन हुई है, जो अगर मैं देखूं तो मुझे शायद हो सकता है कि मोबाइल की एप्लीकेशंस रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती हो, लेकिन उसको नहीं आती। ओके, ही इज अपडेटिंग हिमसेल्फ, जबकि मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। सॉरी फॉर ऑल टीचर्स, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। हमें सभी टीचर्स को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है, जो मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो सिचुएशन है, जो वायरस है, इट मे टेक, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, इट मे टेक 6 months, 12 months और सो, एंड कांट से, पर ऐसा दोबारा से भी हो सकता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अब 6th, 7th, 8th क्लास में, तीनों क्लासेस में क्या होगा, एक तो कंप्यूटर अटैच हो जाएगा, दूसरा साइंस, मैथ और आर्ट्स ये कंपलसरी होंगे। उसके बाद वोकेशनल टीचर, जो वोकेशनल टीचिंग होगी, अगर आपको कोई काम सीखना है, किसी स्टूडेंट्स ने 6th, 7th, 8th में अगर कोई कारपेंट्री सीखना चाहता है, अगर कोई ऑटोमोबाइल सीखना चाहता है, कोई रिपेयर करना चाहता है बच्चा, ठीक है, तो इस सिस्टम में वो ये सब कुछ कर सकता है। अब उसको ये अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर्स, से होम साइंस, ठीक है, ये एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये रेगुलर सब्जेक्ट होंगे, और इनके क्रेडिट और इनके मार्क्स ऐड होंगे सिस्टम में आपके। अंडरस्टैंड? कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि एडिशनल ये पढ़ना पड़ेगा, वो अपनी पढ़ाई के साथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ के साथ, ठीक है, इसको साथ साथ में पढ़ेगा, अलग से इसके नंबर नहीं लगेंगे। कई बार होता था इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो नहीं लेना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज, हम जो अभी तक पार कर चुके हैं, 5+3+3+4, नाउ इट इज सेकेंडरी स्टेज, इट इज अ 4 year स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें बच्चा जो हमारा क्या करेगा, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, 9, 10, 11, 12, ये 4 क्लासेस क्लियर करेगा। अब इस 4 क्लासेस में सबसे एक तो कंपलसरी इसमें रहेगा एक फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज में इट में भी इंग्लिश हो सकती है, इट में भी जापानीज हो सकती है, इट में भी फ्रेंच हो सकती है। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में हमें फायदा क्या है, हमारे हर बंदे को, कोई भी है, इवन चाहे कारपेंटर है, वो इतनी इंग्लिश समझ लेता है कि उसका काम चल जाता है। आज इंडिया का जो सिटीजन है, वो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड की हर कंट्री में काम कर रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। अगर हम
अदर कंट्रीज में देखें, जापानीज को या चाइनीज को देखें, तो अदर कंट्रीज में इंग्लिश का इतना सिस्टम नहीं है, वो इंग्लिश को नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं चाइनीज जो अदर देन चाइना काम कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस हमें इंग्लिश का बेनिफिट तो है। उसके बाद एक आपको लैंग्वेज इसमें लेनी पड़ेगी 9th 10th 11th 12th में, इट मे बी फ्रेंच, कुछ भी आप ले सकते हो, एक लैंग्वेज मस्ट है। दूसरा जो मेन इसमें ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं कि अब इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी साइंस की या कॉमर्स की, ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, ना आर्ट्स की होगी। इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होगा क्या, अब जो 10+2 नॉन मेडिकल हम समझते हैं कि बीटेक में एडमिशन ले लिया, तो उसमें जो क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर्स या ये। अब इसमें पॉसिबिलिटी है हिस्ट्री आ सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ सकती है। अब होता क्या है, बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने एंट्री करनी है, एग्जामिनेशन देना आईएएस का, एग्जामिनेशन देना है बैंकिंग का, उसका करियर क्लियर है एग्जाम, या उसने अपने बिजनेस में जाना है। अब होता क्या था कि अगर हम क्लैरिकल में देखें, सॉरी, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो होता क्या है, ये मैं एक सर्वे था जो, उसमें जो इंजीनियरिंग के और मेडिकल के जो साइंस स्टूडेंट हैं उनकी पास आउट परसेंटेज ज़्यादा है कंपटीशन एग्जाम में। रीज़न क्या है, उन्होंने मैथमेटिक्स किया हुआ है, उनकी रीजनिंग अच्छी है। लेकिन अगर एक साइंस का स्टूडेंट भी साथ में मैथमेटिक्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर ले रहा है, हिस्ट्री का पेपर ले रहा है, ज्योग्राफी का पेपर ले रहा है, इट मींस उसका एप्टीट्यूड, उसका आईक्यू लेवल बना दिया साइंस और मैथमेटिक्स ने। लेकिन जो उसको स्कोरिंग है, उसका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, उसका इंटरेस्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो वो ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं ले सका, 9th 10th +1 +2 पे नहीं ले सका, उसको वो दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है सारा। अब ऐसा नहीं होगा। अब 9th 10th 11th 12th में बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रीम में नहीं ऐड होना, उसने सब्जेक्ट ले लेने हैं। एक फिजिक्स और मैथ लेके बच्चा हिस्ट्री ले सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है, रीजनिंग ले सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकता है। अब इसका स्कोप बच्चे का आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा। ओके। अब जो सेकेंडरी स्टेज है, जो 5+3+3 सेकेंडरी स्टेज क्लियर करके बच्चा 9th 10th 11th 12th क्लास में हो गया। अब जो बोर्ड एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम जो अभी चल रहे हैं 11th 10th और +2 दोनों के होंगे। उसके बाद आ गया ग्रेजुएशन का सिस्टम। अभी जो इनिशियली जो ड्राफ्ट है एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेजुएशन बेसिकली 4 साल की होगी, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो अपनी चॉइस के। अगर आपने बैंकिंग में जाना है तो मैथमेटिक्स आप लोगे, अगर आपने कोच एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है मैथमेटिक्स साइंस ले सकते हो, अगर आपने जाके इसरो में बनाना है साइंस ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें। अब आफ्टर +2 व्हेन यू शिफ्ट टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पहले क्या होता था कि अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 10+2 किया है कभी पंजाब बोर्ड से, कभी ये नहीं सुना कि जो बीए किया है पंजाब बोर्ड से किया है, ऐसा नहीं होता। बीए सीबीएसई से किया है, ऐसा नहीं होगा। अब पहले क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, आपको +2 करके छोड़ देती थी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अब वो नहीं सिस्टम। अब इसके बाद भी आपके ऊपर चेकिंग है गवर्नमेंट की, इंस्टीट्यूशंस पे चेकिंग है गवर्नमेंट की। अब ये होगा क्या, आफ्टर +2 व्हेन यू एंटर ए इंस्टीट्यूशन, इट मे बी यूनिवर्सिटी, इट मे बी ए कॉलेज। अब अगर आप ग्रेजुएशन के +2 के बाद 4 साल की ग्रेजुएशन है, 4 इयर्स कोर्स, अगर आप 1 साल लगाते हो, 1 साल आपने लगा लिया, आप कहीं पे प्लेसमेंट हो गई आपकी, कहीं पे आपने कोई काम शुरू कर लिया, 1 साल लगा के अगर आप छोड़ोगे तो इट यू विल बी अवार्डेड ए सर्टिफिकेट कोर्स। मींस आपको जो डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन 1 ईयर सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है, मल्टीपल एंट्री है इसमें, ये मैं बताता हूँ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। अब अगर आप 2 साल लगा रहे हो तो यू विल बी अवार्डेड ए डिप्लोमा।
आपको एक डिप्लोमा अवार्ड होगा। उसके बाद अगर आप 3 साल लगा रहे हो, 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। किसी भी जॉब के लिए इट विल बी ए ग्रेजुएशन विल बी मस्ट। 3 साल आप लगाओगे तो आप यू आर एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू द जॉब, किसी कंपटीशन में दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। अब इसमें मैं पॉज लूंगा 3 साल में। अब इसमें 3 साल करके आप अपना फ्री हो सकते हो, आपको बैचलर की ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने अब बैंकिंग में जाना है, ठीक है, इट मींस आपने ग्रेजुएशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स जरूर लिया होगा, स्टैट जरूर लिया होगा। अगर आपने साइंस में जाना है तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर ली होगी, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस बन जाएंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे। उसके बाद अगर आपने फिर से अपनी कंटिन्यू करनी है एजुकेशन, इट विल बी अ 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स। जो 4th ईयर होगा वो रिसर्च के लिए होगा। रिसर्च आर्ट्स में भी हो सकती है, रिसर्च मैनेजमेंट में भी हो सकती है, इंजीनियरिंग में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जो रिसर्च वाला पोर्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिसर्च बोर्ड बनाएगी जिसमें ग्रांट्स और फंडिंग अवेलेबल होंगी। ओके। उसके बाद अगर इन 4 सालों में ग्रेजुएशन में कोई बंदा 1 साल लगाता है तो सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 इयर्स डिप्लोमा, 3 ईयर डिग्री। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो 1 साल लगा के, तो आप कभी भी आकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपने छोड़ा था। इट मींस ये नहीं होगा कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया ग्रेजुएशन फिर से आपको फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, नहीं। फर्स्ट ईयर कर लिया यू विल बी अवार्डेड सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर कर लिया डिप्लोमा, थर्ड ईयर कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने फर्दर एजुकेशन करनी है तो आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी 4th ईयर लगा के, दैट विल बी रिसर्च। ओके। उसके बाद रिसर्च होगी, देन एमफिल। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी 1 या 2 साल की। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल का बेनिफिट क्या है कि अगर तो आपने 3 साल की डिग्री की है तो आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है, मींस 1 साल आपको। और ऐसा नहीं है कि अगर आप भाग जाओगे 3 साल लगा के तो 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल की होगी, ठीक है। जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन की है उसके लिए 1 साल। उसके बाद एमफिल खत्म हो जाएगी, पीएचडी शुरू है। ये तो था स्कूल लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का सिस्टम। जो मेन जो अभी जो इसमें प्लस पॉइंट्स हैं, एक तो टीचर्स के लिए 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स जरूरी हो गया है। कोई भी बीए और बीएड ग्रेजुएशन में और साथ में बीएड कोर्स कंपलसरी होगा, 4 ईयर कोर्स होगा कोई भी। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, ये पहले लास्ट गवर्नमेंट के लेवल पे भी था, लेकिन अब इसको अग्रेसिवली इम्प्लीमेंटेशन होगी कि जो फॉरेन की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं। पहले था कि अगर आप 50% समथिंग 50 करोड़ के आसपास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिपॉजिट करवाओगे तो आपको ये अटैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अब रैंकिंग के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, 50 यूनिवर्सिटीज टॉप वर्ल्ड की हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और सेंटर खोल सकते हैं। ओके। इसका हमें डायरेक्टली बेनिफिट होगा। अब उसके बाद जो रिजल्ट सेक्शन होगा इसका, अब रिजल्ट सेक्शन में अगर से सीबीएसई में या पीएसईबी में जो भी सिस्टम बनेगा, उसमें रिजल्ट सेक्शन में जो मार्क्स हैं, मार्क्स तो आपके आएंगे आएंगे जो भी आपके बच्चे ने प्लस 10th में या +2 में या ग्रेजुएशन में सिस्टम किया उसका। अब एक आपको सेल्फ असेसमेंट लगानी पड़ेगी। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप किसी भी जैसे भी आप अटैच होगे, आप ये सोचते हो कि यार मैं ऐसे करके ऐसा बनना चाहता था, या मैं बैंक में जाना चाहता था, या मैं इस पॉलिसी को ऐसे कर सकता हूँ, आप इसको ऐसे कर सकता हूँ। कोई भी अटैचमेंट है, ये जो अगर प्लेटफॉर्म है जो ये जूम मीटिंग का है, इसमें मैं इंप्रूवमेंट कर सकता था। सेल्फ असेसमेंट आपको लगानी पड़ेगी। दूसरा है आपके फ्रेंड्स, आपकी जो आपकी क्लास है वो आपके बारे में असेसमेंट देंगे। अब
ऐसा नहीं है कि संदीप शर्मा की क्लास में 4 बच्चों से नहीं बन रही, ऐसा नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट मुझे सारी क्लास के साथ बना के रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है? तो नेचुरली मेरे बिहेवियर में फर्क पड़ेगा। इट विल बी ए पॉजिटिव वन, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, क्योंकि मैंने किसी की असेसमेंट लगानी है और किसी ने मेरी असेसमेंट लगानी है। इट विल बी मोर कोऑपरेटिव। उसके बाद जो लास्ट में आएगा टीचर की असेसमेंट, जो टीचर्स ने आपकी असेसमेंट लगानी है वो लगानी ही है। ओके, उसके बाद जो जो मेजर चेंज है, अगर हम एजुकेशन स्कूल लेवल से हटके, आई विल टेक जस्ट 1 or 2 minutes मोर। एक जो एजुकेशन सिस्टम में अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनने जा रही है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम में ना लेते हुए अभी सिर्फ स्कूल लेवल पे जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। मिस्टर गगन, हेलो थैंक यू सर। मिस्टर गगन, या थैंक यू अभी कोई भी किसी की क्वेरी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन, प्लीज। थैंक यू डियर। Excuse me, sir. Sir, Yeah. I am Anu Jindal from Dhyanand School, Dhyanand Public School. Sir, I just want to ask, in middle stage, like when the students are entering 6th, 7th, 8th, they Yeah. have to opt any language, any Indian language. Yeah. Like if they are मतलब they are नहीं sorry sir, secondary stage में in foreign language they are opting English. Yeah. So can they opt any other language like French Yeah. or Japanese rather than English, or they can choose both languages? You can choose both languages now. You can choose both मतलब languages. It will both be beneficial. languages. Yeah. क्योंकि एक्चुअली Sir, ऐसा होता है कि कई बार प्लानिंग होती है कि मैंने जाके जर्मनी में जाना है, ठीक है, okay sir, तो मुझे फ्रेंच आनी चाहिए। okay sir. या Sir, जैसे I just want to ask कि if they are choosing two languages, या then their subjects will be increased. So they have to मतलब they can't take any physics or history. They have to delete that subject also, or they have to take only those subjects. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मैडम जो टोटल 5 या 6 कोर्सेज हैं जो, ठीक है, जो Okay. डिजाइन होंगे 5 या 6 कोर्सेज, उसमें ग्रुपिंग की गई है। उस Okay. ग्रुप में अगर ये होता है कि अगर इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश मस्ट है, कंपल्सरी कोर्स है, उसके बाद जो फॉरेन लैंग्वेज है इसमें इट में बी फ्रेंच, इट में बी जापानीज, इट में बी एनीथिंग एल्स, Okay. कोई भी Okay. हो सकता Thank है। you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, वेलकम। So myself Manpreet from Nabha Preparatory School. So my query is they already class 1 and 2 they are having national language as well as mother language. But now they will start from class 3rd, 4th and 5th. How can we manage this? Very interesting question, ma'am. Now there are this I have already shared that at presently the draft of this policy is tabled. Now it will be from 2022 or 2023 it will be implemented through Yes, sir. NCERT. NCERT is making a syllabus. अब इसमें 2 टाइप का सिस्टम होगा कि क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरा जो होगा जो नए स्टूडेंट्स एंटर करेंगे, आइदर इट विल बी 2 स्ट्रीम्स, इट मे बी पॉसिबल, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है फ्रॉम कभी किसी क्लास से तो हमें शुरू करना पड़ेगा, इट मे बी फ्रॉम न्यू स्टार्ट और इट मे बी द बोथ द सिस्टम विल बी ओवरलैपिंग अप टू सम स्टेज। Okay. इट विल बी डिसाइडेड बाय द एनसीईआरटी। Sir, जो books होगी we have to implement only NCERT books or any private publishers for that? At present, again both the systems are at presently in current education system. We are implementing both the systems. Again, Yes. in future, because the education is a part of central government and also again a part of state government. ये दोनों का पार्ट है, ये दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन में चलती रहेंगी। एनसीईआरटी का जो होगा वो बेसिक होगा, उसके बेस को लेके हम अगर प्राइवेट जो बुक्स हम कर सकते हैं, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। Thank you very much, sir.
please. Thank you. Excuse me, sir. Sir, I just Yeah. want to ask one more thing. कि by if student is taking music, है ना, as a subject, so there will be a categorization of vocal and instrumental, or he can opt both. No, no, no. Music is under the both the categories comes under one course. In the music, it is already cleared in the NCRT system. It will be under one section. Separately? Okay. Excuse me, sir. I Ji, have a question. please. Does this new education policy affect the teachers which are already teaching in semi-government or private school? As I am from Vidyapit School, Samana, and I am teaching in a private school right now. So, do we need to do some kind of course to update ourselves? Yeah, it's a very interesting question, ma'am. Please. Basically, जो स्कूल लेवल पे, जो मिडिल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो होगा क्या, जो अभी एनसीईआरटी जो सोच रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा कि डिफरेंट कोर्सेज हमको एक साल में कम से कम 1 या 2 कोर्सेज हमको इम्प्लीमेंट करवाने ही होंगे, हमको लगाने ही पड़ेंगे। अभी जैसे जो यूनिवर्सिटीज में एपीआई सिस्टम है, प्रोफिशिएंसी इंडिकेटर होता है जो हमारे पास, कि हमें एज ए प्रोफेसर मुझे 1 साल में एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना ही पड़ता है। दिस इज कंपल्सरी। अगर मैंने नेक्स्ट स्टेज के, अगर मैंने नेक्स्ट अपना प्रमोशन लेनी है, अगर मैंने अपना बेसिक बढ़ाना है, तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। टू डू द कंटिन्यू इन द एजुकेशन, these faculty development program, they will be organized by the central government or UGC or school level. But there is one thing, na sir. See, we are the one which have already graduated and we have done the graduation, post graduation right now. Okay, currently I am PTET and CTET qualified, right? But what about these things? Are we going to get affected by this thing? No, See, we have already qualified we are not the main affected by things. that. I agree, ma'am. We are not affected by it, but we have to update ourselves. I know we have to update ourselves. For example, like we are the people who have not done BA, they have to do a bridge course of 6 months. That is the kind of updating themselves, right? Yeah. But the thing is, now the new policy has been affecting the teachers more as compared to the students, because it will be implemented in 1 to 2 years. This But is what not about our qualification? no. This is not affecting any teacher at present, ma'am. Not at all. Now the new teachers entering the system will go through the 4-year system, 4-year B.Ed. It will be cumulated BA B.Ed course. The previous I know that. yeah, जो Yeah. ऑलरेडी सिस्टम में जो टीचर्स ऑलरेडी रनिंग में है, ऐसा नहीं होगा कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है, जो मेरा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, अब मुझे अपने आप को अपडेट क्या करना पड़ रहा है? आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ रिगार्डिंग दीज ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन हाउ टू टीच ऑनलाइन, ओके, हाउ टू गो ऑनलाइन रिसर्च। जो अगर मैं ये FDPs फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रूटीन में अब मैं अटेंड कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं करता था। रीजन क्या है कि मुझे भी मोर कॉशियस, मुझे क्या है कि अगर मेरी मार्केटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ, nothing, no tension about this. Excuse me, sir. Good morning, sir. I am Good Ritu Sharma from Nabha Preparatory School, sir. Yeah. What type of improvements we have to do for teaching, sir? Good. Ritu, at presently, apart from the teaching the bookish knowledge, we have to arrange, we have to record the ourself videos. Okay, अब sir. मैंने अभी रिसेंटली मैंने खुद में, कभी मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, कभी Yes, मैंने sir. अपना जो नोट्स हैं वो संभाल के नहीं रखे, मैं सही बताऊं। अभी क्या हो रहा है, फ्रॉम लास्ट 3 months आई एम क्रिएटिंग माय यूट्यूब चैनल। Yes, sir. यूट्यूब चैनल पे जो मैं सब्जेक्ट, मैं पिछले 25 साल से, मैं आपको सही बताऊं, 25 साल से मैं अंदाजा रफली 3 और 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपने 3 और 4 साल के जो 4 कोर्सेज हैं, I am preparing my YouTube notes, YouTube audio videos, YouTube PPTs, and sharing with my students. Secondly, the research work you can Yes. aptly you can do at the school level.
अगर साइंस लैब है, एजुकेशन लैब है, आर्ट्स में है, मैनेजमेंट में है, you can do research at school level. You can Okay, sir. motivate your students for the project oriented coaching, project oriented teaching. कि जैसे हमने Yes. केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट पढ़ लिया salt making, try to implement this salt making through the project, Okay, sir. so that apart from just a question answer level, your student try to develop the project on salt making, try to develop the say one bulb and one switch is just a circuit diagram. It is on paper, हमने सबने पढ़ा है, पेपर पे पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन Yes, कभी sir. भी Yes. मैंने अपने स्कूल लेवल पे एक बल्ब को कभी भी मैंने स्विच से ऑन नहीं किया, नेवर. Hmm. बट नाउ वी हैव टू, एज ए टीचर वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट. Okay, sir. Thank you, sir. Previously, there is a lot of difference between separate boards like CBSE, ICIC, and PSCB. Now, can we say this policy is one nation, one education board? No, ma'am, it will remain because the education is the both policy, both matters, both levels, at state and center level. Okay. Yeah. Politically, geographically, there are a lot of difference between the Punjab and you say Jharkhand and Mizoram and Kerala. It will remain Thank state you. and center level. Please. It is not possible, sir, one nation, one policy in future. It may be possible, होना तो यही चाहिए. But when we go to the grassroots level, we go to the say interior parts of Punjab or interior parts of Jharkhand or interior parts of Mizoram, Assam. There are not even a classrooms available. The not level of the teachers is available. In Punjab, mostly we are, you can say that we are a rich state. Yes, sir. It will take time. Now at presently अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे देख रहा हूँ कि अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, ऑनलाइन हमने एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 100% स्टूडेंट मेरा एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाया. रीजन क्या है? Same problem with everybody, sir. Yeah. It will take some time. It is a infrastructure development. Okay, sir. Thank you, sir. Please. Ji Gagan, I think it is 11:15. Yes, sir. Thank you. Thank you for your sir valuable knowledge, sir. I think जो डाउट थे वो ऑलमोस्ट सबके क्लियर हो गए. If still anybody have any doubt, has any doubt, please you can ask. Or You can share my number with the participants. yes. Sir, it's good if you like speak out all everybody can, sir. Okay, I'm sharing my email and my mobile number. It is Dr. Sandeep Sharma. It is 98550 98. 550 13524. It is 98550 13524. I have already displayed in the chat box. Yes. I am sharing my email also. DRSANDEEP DRSANDEEP SHARMA75 @gmail.com. DRSANDEEP SHARMA75 @gmail.com. Ji Gagan. Thank you very much, sir. Now everybody can contact you if any doubt, any kind of doubt is remaining, you can contact sir. And thank you very much, sir. Thank you very much, sir. On our single request, you are ready to spare your valuable time for us, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. And sir, in future we also want, there are many things
which we are which we want to learn from your side, sir. In future, might be we will disturb you again, sir. For Just a suggestion, Gagandeep. Yes. Try to attach the teachers with the PPTs, how to make the PPTs, how to make the video lectures, plus and minus points, do's and don'ts in the video lectures, do's and don'ts in the PPTs, etc. Especially the science teachers, the mathematics teacher, geography, political science teacher, English teacher. There are lots of platforms available. Lots of platforms available. Yes, sir. Yes. Yeah. We'll do it in future, sir. Very soon, we will definitely plan a program on these aspects, sir. Okay, dear. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Once again, sir. Thank you, sir.